یحییٰ بیٹھ سکتے ہیں، زکریا بیٹھ سکتے ہیں، موسیٰ بیٹھ سکتے ہیں، عیسیٰ بیٹھ سکتے ہیں، یوشع بیٹھ سکتے ہیں، اسحاق بیٹھ سکتے ہیں. کون بیٹھ سکتا ہے؟ کوئی نہیں بیٹھ سکتا. جب میرا پیغمبر کھڑے ہیں تو کسی کو حق حاصل نہیں ہے. جب نبی نہیں بیٹھ سکتا تو پھر ان کی امتیں کیسے بیٹھ سکتی ہے؟ تو پہچانو، اب جناب فاطمہ جو آئی، ان کے احترام میں فقط رسول نہیں کھڑا ہوا، پوری کائنات کھڑی ہے. پوری کائنات کھڑی ہے احترام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں. لیکن آگے بڑھتا ہوں تو پر چلتے ہیں. وہ یہ ہے کہ وہی بی بی جب کبھی وقت آتا ہے تو دربار میں خود 3 گھنٹے کھڑی رہتی ہے. کسی نے یہ نہ کہا کہ اے رسول کی اکلوتی بیٹی، ہم نے تو بہت زیادہ آپ کے بارے میں سنا ہے، لیکن کسی نے نہ کہا ہاں زیادہ. آج پرسا جناب سیدہ کو ان کے لال کا دینا ہے. یہ عجیب بات ہے. پرسا جناب سیدہ کا بہت گہرا پرسا ہے، کیونکہ وہ بہت دور سے آتے ہیں، ہر آزادار کے گھر آتے ہیں. میں نے علماء سے سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم گھر سے چلتے ہیں لیکن جناب سیدہ سب سے پہلے ہر گھر میں جاتی ہیں، ہر گھر میں جا کر دعوت دیتی ہیں میرے لال کا ماتم ہونے والا ہے، اور پھر دعوت دے کر خود گھر نہیں جاتی، واپس سیدھی مسجد میں مارگاہ میں آ جاتی ہے، اور ان کے ہاتھ میں ایک رومال ہوتا ہے، اور اس رومال کو لے کر اس ایک چہرے کے پاس جاتی ہے، کہیں سے کچھ مل جائے. جب مل جاتا ہے جا کر حسین کے زخموں پر لگاتی ہے، جس کے ذہن میں 119 زخم مل جاتے ہیں. لیکن روایت یہ کہتی ہے 2 زخم نہیں مٹتے، 2 زخم اسی طرح سے رہتے ہیں. ایک چادر زینب کی، ایک سینہ اکبر کا. اس رات کی عظمت کو پہچانو. اس رات کی کیا عظمت ہے میرے سے مجھ سے نہ پوچھو. کوئی جا کر ام لیلا سے پوچھے، کوئی ام فروا سے پوچھے، کوئی زینب و کلثوم سے پوچھے. جزاؤکم ربکم خیر الجزا. اس ماتم کا بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے. دیبل میرے مولا کا چاہنے والا ہے، امام رضا علیہ السلام کا. وہ کہتا ہے کہ میں نے اس انداز سے ہمیشہ شاعری کر کے آتا تھا، لیکن ایک مرتبہ جب میں میرے مولا امام رضا کی بارگاہ میں آیا اور میرے مولا امام رضا نے کہا دیبل آج تمہیں معلوم ہے آج کیا تاریخ ہے؟ اس نے کہا مولا آج 1 محرم ہے. جب یہ کہا نا 1 محرم ہے، کہا تو ہمارے چاند کا مرثیہ لکھا ہے تو نے؟ کہا ہاں مولا میں نے مرثیہ لکھا ہے. اور اس کے بعد کہا اچھا دیبل ذرا ٹھہرو، میں ذرا پردے کا اہتمام تو کر لوں. یہ جو پوچھا جاتا ہے نا بیویوں کی آپ کو سنت ملتی ہے مجلسوں میں جانے میں، ارے یہی سنت ہے جو امام رضا نے برپا کی ہے. اور درمیان میں پردہ کھڑا کر دیا جاتا ہے، دیبل مرثیہ لکھا جاتا ہے اور پڑھتا ہے کہ ایک میرا شہنشاہ نجف میں سو رہا ہے، کوئی کربلا میں سو رہا ہے، کوئی کاظمین میں سو رہا ہے. میرے مولا نے ایک دفعہ کہا ہے دیبل کا ذرا یہ بھی کہہ دو ایک تیرا سلطان خراسان میں سو رہا ہے. جب اس نے پوچھا مولا وہ کون ہے؟ کہا وہ میں غریب رضا ہوں. امام رضا کی عظمت یہ ہے، انہوں نے ہمیشہ مجلس حسین کو برپا کیا. مولا کا چاہنے والا ہے. اور ایک مرتبہ ماتم ہو رہا، مجلس ہو رہی، ذاکر مجلس پڑھ رہا ہے، لیکن ایک دفعہ میرے مولا نے کہا یبنا شبیب تم رو کیوں نہیں رہے ہو؟ تم کیوں نہیں رہ رہے؟ وہ پڑھ کر کہتا ہے مولا میں رو تو رہا ہوں. کہا نہیں ایسے رو جیسے ہماری چتا روتی ہے. ارے جس ماں کا جوان بیٹا بچھڑ جائے جیسے وہ روتی ہے. اس گریے کا بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے. ہر ایمان نے اس کو وفا کیا ہے، ہر امام کی سیرت میں آپ کو یہی ملے گا. تو عزادارو یہ آنسو قیمت اس کی اس وقت پتہ چلے گی کہ جب محشر کا میدان ہوگا، ادھر سے جناب سیدہ آئے گی.
जनाब सैयदा का मैशर में आना इस अंदाज से होगा कि एक दफा आवाज आएगी, या मैशर गुज़्ज़ू अबसारकुम, अपनी आंखों को बंद कर लो, रसूल की बेटी आ रही है। हाँ ज्यादा रुबा आएगी, आपकी शफाअत करेगी। तो मौला को पुरसा दो, मौला को दो आंसू दे दो, बीबी के दिल को तसल्ली हो जाए कि अगर करबला में मारने वाले थे तो आज कितने चाहने वाले भी आ गए। बीबी ये बहुत बड़ा मजमा आपको पुरसाने में आया है, लेकिन साथ ही मैं हाथ जोड़कर कहूंगा, बीबी हमें माफ कर देना, बीबी हमें माफ कर देना, हम आपका हक अदा न कर सके। करबला वाले आप 10 दिन हमारी मेहमान हुई, लेकिन अफसोस बीबी हक अदा न हो गया। हम आम इंसान, हम गुनाहगार, हम खताकार, हम बेचारे, बीबी हमें माफ कर देना। तुझे वास्ता है हुसैन का, तुझे वास्ता है रुमाल की खाली गोद का, कि जो आज असगर को अपनी गोद में लिए बैठी है, कल नहीं मानो असगर कहाँ होगा। जज़ाउकुम रब्बुकुम खैर जज़ा। अज़ादारो, इसी तरह से ये रात भी आ जाती है, इस रात में आप बैठे हैं और यही रात मेरे मौला ने उन लोगों को कहा और कहा, जाओ अब्बास इनसे कहो कि हम एक रात और चाहते हैं, एक रात और हमें मिल जानी चाहिए। लेकिन यही बताना चाहते थे मेरे मौला आका कि देखो मैं तुमसे मोहलत मांग नहीं रहा हूँ, बल्कि मोहलत दे रहा हूँ। तुम पहचानो कल क्या करने वाले हो, तुम कल क्या करने वाले हो। हाँ ज़ादारो, और इसी तरह से ये है कि जो निखरे हुए सहाबी जो मेरे मौला आका हुसैन को मिले हैं, देखो किसी नबी को वो सहाबी नहीं मिले। कोई ये नहीं कह सकता कि रसूल के साथ जितने भी थे सब वो मोमिन थे, नहीं, सूरह मुनाफिकून गवाह है, लेकिन सब के सब मौला के सच्चे चाहने वाले नहीं थे। कोई नहीं कह सकता कि जितने भी अली अलैहिस्सलाम के साथ थे सब के सब मोमिन थे, नहीं, उसमें भी मुनाफिक बाद में निकले। कोई ये नहीं कह सकता कि इमाम हसन के साथ जितने थे वो सारे के सारे मोमिन थे। अगर मोमिन होते तो इमाम को ताने के बाद में देते, लेकिन फकर ये हुसैन है, फकर ये हुसैन है कि जिसके चाहने वाले, जिसके असहाब सब के सब मोमिन है। मेरे मौला आका ने इस अंदाज से अपने को भी निखारा और दुश्मन को भी निखार कर रख दिया और ये साबित कर दिया कि मेरी तरफ सब मोमिन ही मोमिन है। देखो मैं रात का चराग गुल भी कर रहा हूँ, रात की तारीकी भी कर रहा हूँ। दुनिया तो यही समझती है ना कि आखिरी दम तक फौज को कहा जाता है कि तुम्हें हम भरोसा देते हैं, बिलाहर जीत हमारी होगी, हम कामयाब होंगे। लेकिन वाहिद हुसैन है जो करबला में ये कहते हुए नजर आते हैं कि कोई तुम में से जाना चाहे तो जा सकता है, ये कौम फकत और फकत मेरे खून की प्यासी है, तुम्हें इजाजत है अगर तुम जाना चाहो तो जा सकते हो। इस एतबार से ये है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सबको कह दिया, रवायत ये कहती है कि कोई जाने के लिए तैयार नहीं। जब कोई जाने के लिए तैयार नहीं है, कहा अकबर अब्बास जरा चरागों को गुल कर दो, चराग बुझा दो। हो सकता है कोई शर्मिंदगी से ना जा सकता हो, लेकिन चराग जब बंद किया गया, अब जब उसके बाद जलाया गया तो अगर सुनोगे जो बूढ़े थे वो अपनी कमर चबाकर खड़े हो गए, जो बच्चे थे अपने बच्चों पर खड़े होकर साबित करे मौला हम कभी नहीं छोड़कर जाएंगे, हम कभी ना छोड़कर जाएंगे। ज़ुहैर से पूछा गया तुम शहादत को क्या समझते हो? कहा 70 मरतबा अगर मार दिया जाओ, 70 मरतबा जिंदा किया जाऊं, मैं हुसैन पर कुर्बान हो जाऊंगा। ये पूरी कौम हुसैनी है, ये करबलाई है। हाँ ज़ादारो, मरहबा कहना चाहिए असहाबे हुसैन को। और उसी तरह से जब रात की मोहलत उन लोगों को दे दी और ये साथ कहकर ये कहा कि मुझे कुरान से बहुत मोहब्बत है, मैं कुरान को बहुत ज्यादा अजीज रखता हूँ, क्योंकि रसूल खुदा ने फरमाया हम जुदा होने वाले नहीं है, और नमाज मेरी आंखों का नूर है,
आज़ादारों, आज तक मैंने आपको इस तरह से ना कहा, लेकिन आज़ादारों, हुसैन का पैगाम हमें यही मिलता है कि नमाज को हुसैन ने अपनी ठंडक कहा है, आंखों की ठंडक कहा है। तो हुसैन का चाहने वाला हकीकी वही हो सकता है जो नमाजी भी हो। ऐ परवरदिगारा, हमारे आज़ादारों को नमाजी बना, हमारे नमाजियों को आज़ादार बना। परवरदिगार आलम, इसी तरह से आज़ादारी करना चाहते हैं जैसे सैयद सज्जाद किया करते थे। जनाब सैयद सज्जाद की कैसे आज़ादारी थी, जब भी उनके सामने पानी आता वुजू के लिए, पानी लेते, वुजू करते, रो देते। अगर किसी ने पढ़कर पूछ लिया, मौला आप रोए क्यों, कहा है जानने वाले तूने इंसाफ नहीं किया, अरे ये वही पानी है जिससे प्यासे हमारे करबला में मारे गए। जज़ाओं को मरफ़्फ़ो है जज़ा। रोजे का टाइम इफ्तार का वक्त आता था, सामने जब गजा आती, एक दफा करबला का रुख करके कहते थे, अरे हमारे करबला में 3 दिन के भूखे मारे गए, कोई गजा ना मिली। इसी तरह से आज़ादारी भी करते, खुदा की इबादत भी किया करते थे। हाँ आज़ादारों, उसके बाद यही सिलसिला, ये रात कैसे गुजरती रही मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिनकी छोटी छोटी बच्चियां हैं आज़ादारों, बस मैं अब आपकी ज़हनों को तमाम करने वाला हूँ। अब अपने ज़हनों को आमादा करो, अपने दिलों को तैयार करो, ताकि शहजादी को आखिरी पुरसा ऐसा दिया जाए, पापी बीबी हमसे सबसे राजी हो जाए। अब इंतजार में न रहो कि मैं कोई खास पढ़ूंगा तो रोना आएगा, नहीं, सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, उस पाप से पूछो या उस 3 साल की बच्ची सकीना से पूछो, जिधर बाप जानते हैं बेटी साथ चली जाती है, साथ बेटी है, रात गुजरती गई, ये रात कैसे गुजरी होगी। जब इंसान कोई भी मुसाफिर सफर करने के लिए निकलता है, बच्चे रात भर जागते रह जाते हैं, बच्चों को नींद नहीं आती। आज़ादारों, उससे एतबार से यही है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ साथ सकीना भी चल रही है। जहाँ जिस फैमिली में मेरे मौला जाते हैं, उसी फैमिली में जनाब सकीना भी साथ आ जाती है। बस इसी तरह से रात इबादत में मुकम्मल हुई, असहाब के साथ मुकम्मल हुई, घर वालों को पुरसे दिए, घर वालों को वसीयतें की। अब जो सुबह का वक्त आता है तो एक मर्तबा जो मुअज्जिन था, मुअज्जिन को कहा कि आज तुम आज़ान नहीं दोगे। आज़ादारों सुन लेना, एक मुअज्जिन खास था जो हमेशा हर मकाम पर वही आज़ान दिया करता था, लेकिन आज आज़ान एक मर्तबा कहा, अकबर आज आज़ान आप दोगे। अब जो आज़ान का कहना था, कैसी वो आज़ान होगी कि जब अली अकबर ने एक मर्तबा कहा होगा अल्लाहु अकबर, बरदर हुसैन ने कहा होगा बेशक तू अकबर है, चाहे मेरा अकबर रहे या न रहे, चाहे मेरा अकबर रहे या न रहे। आज़ादारों, यही कहा होगा, यही वजह है कि जब करबला में अकबर गए तो यही कहा, परवरदिगार तू कमा रहना, मैंने अकबर को भेज दिया। जज़ाओ तुम रब्बुकुम खैर जज़ा। खुदा किसी को ये मंजर न दिखाए जैसे बूढ़े बाप ने देखा, एक मरतबा लेज़र की यानी खाए हुए बूढ़े बाप ने देखा बेटे को एड़िया रगड़ रहा है, और उसके बाद आज़ादारों, जब एक मरतबा रूह परवाज हुई तो फाबाजाओ खत्ता वाला करते ही, अरे बूढ़े बाप ने जवान बेटे के मुंह पे मारे मुस्कुरा रख दिया और कहा मेरे लाल अल्लाह दुनिया बाद खलाफा, अरे तुम्हारे जाने से अकबर ये दुनिया अंधेर हो गई है। आज़ादारों, बस उसके बाद अब हुसैन जिंदा रहते तो किसके लिए, लेकिन उसके बाद एक मर्तबा ख़याम हुसैनी के पास आए और आकर कहा, या ज़ैनब या रुकैया तो या सकीना तो या फिज़्ज़ा तो अलैकुन्ना मिन्नी सलाम, ऐ बीबियों मेरा आखिरी सलाम हो। और उसके बाद एक दफा वहां पर आए जहाँ पर बीमार बेटा लेटा हुआ था, और आकर जो कहा सच्चार बाबा विदा करने आया है। अब जो होश में आए तो एक मरतबा कहा, ऐना ऐना अबू बाबुल फजल अब्बास, मेरा चचा कहाँ गया है, मेरा चचा कहाँ गया, कहा कद को देर, अरे मारा गया, कहा मेरा भैया अकबर। को रब्बों को जैसा आज़ादारों शब आशूर के मसाइब, आज़ादारों ये पता नहीं अगर ये जिंदगी हमें नसीब होगी या नहीं होगी, कल करबला तो राय जा रही है। आज़ादारों मुझे नहीं पता
मौला हमें नसीब हो या ना हो, लेकिन इतना पुरसा दे दो बीबी पंजाबी मां दरगाह से हम सबसे राजी होकर चली जाए। पर एक मरतबा जब पूछा गया मेरे भैया कासिम कहाँ गए, कहा कल को एक मरतबा मेरे मौला आका ने हुसैन ने फरमाया ऐ मेरे लाल कब तक पूछता रहेगा, ला रजुल फिल ख़ियाम में इल्ला आना वांता, ऐ सैयद सज्जाद अब मेरे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं बचा, अब मेरे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं बचा। आप तो आए मक्तल में आए, आज अगर मैं कल इंशाल्लाह पढ़ूंगा तफसील से, लेकिन इतना कहना चाहता हूँ अब जो मक्तल में आए और मक्तल में जंग करते जा रहे हैं, लेकिन एक दफा दो हाथ बरामद हुए, कहा ओ मेरे प्यासे बेटे, ओ मेरे भूखे बेटे, कब तक जंग लड़ेगा, अरे माँ इंतजार में है, ये कहना था। ये एक मरतबा मेरे मौला ने अपनी तलवार को ये कहकर नियाम में रखा, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। असादारो बाकी फौजें जो वापस आने लगी, तीर आने लगे, जजाओं को मेरे के साथ नेज़े आने लगे, अरे के हुसैन का सीना ठंडी होता गया, अरे दिल के अंदर अकबर का गम, कासिम का गम, जिस्म पर नेज़े का दर्द, जख्म, ज़बानों के दर्द, रेत के दर्द। असादारो बस इसके बाद इस मंजर को देख लेना, खुदा किसी बच्ची को ये मंजर न दिखाए, किसी बहन को ये मंजर न दिखाए। एक मरतबा अब तो ज़ैनब ने देखा, मौला आपके भाइयों को सलामत रखे, एक मरतबा अब तो ज़ैनब ने देखा, रवायत के जुमले हैं अशिमरो चार सुराला पदरेगी, अरे शिमर हुसैन के सीने